Friend, hello friend, this is your friend Pankaj Kumar. Today I am going to discuss, we are going to learn figure of speech, rhetorical speech. It is the second videos, okay, of this poetic devices. So figure of speech I have already explained about. Give its not literal meaning but figurative meaning, right? So we have completed fourth figure of speech, right? Now it is apostrophe. What is apostrophe? You must know when you are writing a poem, when you are explaining poem, right? So you must know apostrophe. It is a direct address to some inanimate thing or abstract idea, as if it were living person, or some abstract persons as if it were present. It is a direct address to some inanimate things. कुछ ऐसे inanimate things जो non living things हो, उसको address करना है, उसको calling करना है. Addressing means calling, right? जब हम किसी को जो नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं, लेकिन उसे मैं इस तरह बुलाता मानो वो जिंदा हो, वो हमारी बात को सुन रहा हो, राइट, तो वे एपोस्ट्रोफी में आता है. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कि पर्सन की तरह लग रहा हो कि पर्सन जैसे हमारी बातों को सुनता है, एड्रेस करते हैं, राम कम हियर, श्याम एवरीबॉडी स्टैंड अप, राइट. इसी प्रकार से लग रहा हो वो चीज़ जो इनएनिमेट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो हमारी बातों को सुनता है, राइट. एग्जाम्पल, गांधी जी वेयर आर यू हाइडिंग, राइट. वी आर कॉलिंग बापू, गांधी जी वेयर आर यू हाइडिंग, वी नीड यू, वी नीड लाइक योर लीडरशिप, राइट. You have to come, right? So Gandhi ji, where are you hiding? Means Gandhi ji, everybody knows he no more, but we are calling him dead person, right? As if he were listening to us. Okay. Hello darkness, I have come to talk with you. Means how can a darkness can hear you or get you whatever you ask for? But we are addressing darkness as your living being, as a human being, okay, something this darkness is hearing to, yes, okay. So as calling for, as assuming that some person, her darkness is behaving like some person, right, living things, right. So we can call, hello darkness, I have come to talk with you, please start communicating with me. So this is the example of apostrophe, non-living things when we treat as person or abstract ideas, right. Hyperbole, second number is hyperbole. So what is hyperbole? It is a statement. Hyperbole is a statement that is made emphatic. Emphatic means जोर डालना, okay. So it is made emphatic to make it is a statement that is used to make emphatic, okay, by over statement. कोई भी statement को, statement का प्रयोग करना, किसी भी statement को, किसी भी कोई भी word को, right, इम्फैटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए उसमें ओवर स्टेटमेंट डाल देना, एग्जरेट कर देना, राइट, सिर्फ और सिर्फ इम्फैटिक बनाने के लिए. तो उस प्रकार का स्पीच का पार्ट्स जो है हाइपरबोलिक कहलाता है. जोर डालने के लिए, शब्दों पर अधिक जोर डाल देना, राइट, बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जरेट करना. Overstatement. Example, virtues as the scents of the sword. How can we compare virtue as the scents of the sword? किसी भी तट का सेंट कैसे हो सकता है
लेकिन वर्च्यूज को सैंड्स ऑफ द शोर बताया गया है। मिलियन डॉलर थैंक्स, जब व्हेन वी एक्सप्रेस समथिंग, व्हेन वी शो ग्रेटिट्यूड, ओके, ग्रेटफुल टू समबडी, वी से थैंक यू, और सिंपली आई थैंक यू वेरी मच, thank you very much. But instead of thank you very much, we make the statement, our statement, right? To make this thanks, $1,000,000 thanks. $1,000,000 कितने बार थैंक दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत लाखों शुक्रिया, राइट? आपको लाखों शुक्रिया मीन्स यहाँ पे $1,000,000 थैंक्स हमने लिखा, वेरी थैंक्स की जगह पे हमने इसको ओवर स्टेटमेंट को हमने इम्फेटिक बनाया $1,000,000 को लिख करके, ओके। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू $1,000,000 टाइम्स। कैसे $1,000,000 टाइम्स कब होगा भाई, कैसे हो सकता है, कितने दिन तक वो जिंदा रहेंगे? लेकिन $1,000,000 टाइम्स इसका मीन्स लॉट ऑफ टाइम, सो मेनी टाइम्स, राइट? तो ये सिंपल सेंटेंस को क्या करता है, लॉन्ग सेंटेंस में बदल देता है या फिर ओवर स्टेटमेंट में बदल देता है, ताकि सेंटेंस को ब्यूटीफाई किया जाए, राइट? सेंटेंस में जान आ जाए, ओके। नाउ इट इज सिनोकोडिक। व्हाट इज सिनोकोडिक? इट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय मीन्स ऑफ अनदर। एक चीज को अगर हमें समझने हैं तो उसको दूसरे वर्ड के माध्यम से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, दूसरे वर्ड के माध्यम से उस चीज़ को समझ सकते हैं। एक चीज़ को दूसरे चीज़ों के साथ समझा जा सकता है। जैसे ये हियर इज अ पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल। एक छोटा सा पार्ट जो है वो पूरी वो डेजिग्नेट करता है, वो आया हुआ है, राइट, होल के लिए, होल मीनिंग के लिए एक छोटा सा पार्ट आया हुआ है, और दी होल टू डेजिग्नेट ये पार्ट, और या फिर बड़ा सा स्टेटमेंट, बड़ा सा सेंटेंस एक छोटा के लिए आया है, राइट? ऐसे हम कर सकते हैं, दैट इज सिनकोडिक, ओके। एक चीज़ से दूसरे चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, मतलब एक वर्ड से उसका मीनिंग बड़ा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा से बड़े को समझ सकते हैं, फिर बड़े को छोटे समझ सकते हैं। इंडिया ओन बाय 3 विकेट्स, इंडिया ओन बाय 3 विकेट्स, राइट? यहाँ पे हमने क्या समझा, इंडिया कैसे 3 विकेट से जीतेगा भाई, इंडिया तो एक भारत देश है, नहीं। यहाँ इंडिया का मतलब हो रहा है द इंडियन टीम, तो इंडियन टीम के बदले में एक छोटा सा पार्ट आया हुआ था इंडिया, राइट? तो ये सिनकोडिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओके। बड़े पार्ट के लिए छोटा वर्ड आना। यूफेमिज्म, क्या है यूफेमिज्म? बाय यूजिंग इट, बाय यूजिंग यूफेमिज्म वी स्पीक इन एग्रीबल एंड फेवरेबल टर्म्स ऑफ सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट विच इज कॉमनली कंसिडर्ड अनप्लीजेंट एंड मीन्स कोई है ना, कोई पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग, कोई नेगेटिव चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव चीज़ डाल करके हम लोग उस सेंटेंस को बताते हैं, जो फेवरेबल लगता है, जो एग्री करता है सेंटेंस को हम लोग। फेवरेबल टर्म्स को और एग्रीबल टर्म्स को हम लोग किसी भी पर्सन्स के बारे में, फेवरेबल टर्म्स को और एग्रीबल टर्म्स को हम लोग उसके अनप्लीजेंट और डिसएग्रीबल थिंग के माध्यम से, मिस डिसएग्रीबल थिंग, जो चीज़ लोग नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, राइट? जैसे कि वह मर गया, ऐसा सुनना लोग नहीं चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट अलाइव, ये कह सकते हैं, ही इज़ नो मोर, ये कह सकते हैं, राइट? तो जो भी अनप्लीजेंट चीज़ हो, जो भी डिसएग्रीबल चीज़ हो, उसको हमें एग्रीबल और फेवरेबल के रूप में बदल देना पड़ता है, ताकि वो स्टेटमेंट को सुनने में अच्छा लगे, डायरेक्ट किसी को इमोशनली टच ना करे। जैसे कि ही इज़ टेलिंग अस अ फेरी टेल। अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम्हारा भाई फेरी टेल बात करते, फेरी टेल की तरह बात बताता है, फेरी टेल की तरह बात बता, तो वो क्या है, उसके लिए कुछ थोड़े ही मोमेंट के लिए, शॉर्ट मोमेंट के लिए उसे हैप्पी फील होगा।
दोनों को हैप्पी फील होगा, राइट। और अगर हम कहते हैं योर ब्रदर इज टेलिंग लाई, राइट, टेलिंग लाई, सो ये क्या है ना, इट जस्ट तुरंत ही इसका आइडियाज़ को, इसके सिचुएशन को चेंज कर देता है। जबकि कह रहा है सेम थिंग, ओके, लेकिन तुरंत ही उसके मानसिकता को चेंज कर देता है, राइट। सो इसलिए किसी को अगर बुरा भी कहें, उसे चीनी डाल डाल के उसको बुराई करें, राइट। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, ही हैज़ फॉलन अस्लीप, ये हमने बोला तो इससे क्या है, पॉजिटिव आइडिया पॉजिटिव निकलता है, ये फेवरेबल मीनिंग निकलता है, राइट। एग्रीबल, फेवरेबल प्लस इंटरेस्टिंग वर्ड टाइप का निकलता है। इससे बहुत ही ज़्यादा इमोशन को टच नहीं करता है। अगर हम ऐसे कर दें ही इज़ डेड, तो इसका मतलब वाह व्हाट सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई भी सुन करके हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमें वो अपशब्द नहीं यूज करने हैं, अनप्लीजेंट शब्द यूज करने ही नहीं हैं, राइट। हेटिंग वर्ड यूज करने ही नहीं है। इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढ करके उस हेटिंग वर्ड को बताने हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड यूफिमिज्म। यूफिमिज्म इज प्रशंसा करना, अच्छी बात को कहना। यूफिमिज्म इज अच्छी बात को कहना, राइट। बुरी बातों को भी अच्छी बात में चेंज करके कहना। सो नाउ आई थिंक यू हैव लर्नड apostrophe, hyperbole, synecdoche, euphemism, right. I'll continue it in next video.